الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، نفس اپنے تے چھری پھیر دے نہیں تمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے ناہی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ بلے شاہ نو اے تے دسو اے کی کیتی جاندے ہو، اور پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو دریا کٹوا، پھر تو او دے وچ گوتے لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے تو اپنی میں مکا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان وقار، آج کا ہمارا موضوع گفتگو بہت ہی قابل غور ہے، توجہ کے ساتھ اس عمل جو ہے سماعت کیجیے گا۔ دوستان وقار، ہمیں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حسن سلوک کرو۔ الغرض ہمیں دین سب کچھ سکھا رہا ہے۔ دوسرے وقار، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں اپنا حق معاف کر دیتا ہوں، حقوق اللہ جو ہیں وہ میں معاف کر دوں گا۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، کوئی تیرا ایک چھوٹا سا کام تمہاری قسمت کو سنوار سکتا ہے، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتے رہے ہو، تمہاری کوئی چھوٹی سی نیکی تمہارے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ اللہ نے تو جگہ جگہ پر ہمارے لیے آسانیاں بنائی ہے۔ ارے بندے، ایک نماز پڑھتے ہو، دوسرے کے لیے آتے ہو، دوسری نماز کے لیے آتے ہو، دو نمازوں کے درمیان اگر کوئی صغیرہ گناہ کر بیٹھے ہو، اللہ تو کہتا ہے جب نماز پڑھ لیتے ہو میں اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ مولا، یہ تو تیری کرم نوازیاں ہیں، تیری رحمتیں ہیں، تو کہتے ہیں حقوق اللہ جو ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ مولا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے حسن سلوک بھی کرنا ہے، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ تم نے رشتوں کو توڑنا نہیں ہے بلکہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ آئیے سماعت کیجئے دوستان وقار، آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اس بات پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے الفاظوں سے، اپنے کام سے، اپنی زندگی سے کسی انسان کے دل کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے کسی فعل سے، ہماری کسی بات سے، ہماری زندگی سے ایک انسان بھی روٹھ جاتا ہے، ہماری ساری عبادتیں ہمارے منہ پہ آ جائیں گی۔ کیوں؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو ماں سے ناراض تھے،
वक्त नज़ा आ जाता है, मरने का वक्त करीब है, जान निकल नहीं है। सहाबा परेशान होते हैं, कलमा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लब पर कलमा नहीं आ रहा, सारे परेशान हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम है, आपका नौकर है, आपका कलमा पढ़ने वाला है, आपके पीछे नमाज़ें अदा करने वाला है, मामला ये है जान निकल ही नहीं है, बड़े परेशानी का आलम बना हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जगह पर तशरीफ़ लेकर जाते हैं और पूछते हैं, क्या इसके वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? पता चलता है एक बुढ़िया माई है, इसकी वालिदा है जो जिंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें तलब करते हैं और पूछते हैं, माँ क्या तू अपने इस बेटे के साथ नाराज़ है? माँ अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, हाँ मैं इसके साथ नाराज़ हूँ, इसने मेरे साथ कोई ऐसा काम कर दिया है, मेरी नाफरमानी कर दी है, अपनी बीवी की वजह से मेरी नाफरमानी कर दी है, मैं इसके साथ नाराज़ हूँ। आका ने फरमाया, ए माँ इसे माफ़ कर दो। माँ कहती है, नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी। आका ने फरमाया, अच्छा तू माफ़ नहीं करेगी, जाओ सहाबा लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आग लगाओ, इसको आग में फेंक दो, जितनी देर तक इसको इसकी सज़ा ना मिल जाए उतनी देर तक इसके जिस्म से इसकी रूह नहीं निकल सकती। साहिब-ए-वक़ार, हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, और वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों को दीन की समझ दें, दीन का फ़हम दे, दीन का शऊर दें। जब वो दीन को पढ़ेंगे, दीन पर चलेंगे, तो फिर ही वो हमारी खिदमत कर सकेंगे। आइए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो औरतों का जिक्र किया गया, समाज कीजिए। एक वो थी जो लंबे सजदे करती थी, तावील इबादतें करती थी, इबादत और रियाजत में रहा करती थी, नमाज़े पंजगाना अदा करती थी, रोज़े रखती थी, नवाफिल इबादत किया करती थी, लेकिन वजह क्या थी? ज़ुबान की अच्छी नहीं थी, अपने आइज़ा क़रीब के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया ये सारे अमाल वो करती है, लेकिन ज़ुबान की अच्छी नहीं है, उसकी ज़ुबान से कोई महफूज नहीं है, ना कोई अपना महफूज है ना कोई पराया महफूज है। आका ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है, वो औरत जहन्नमी है। फिर एक और औरत का जिक्र किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लंबे सजदे नहीं हैं, लंबी बातें नहीं हैं, फर्ज नमाजें अदा करती है, अपने फराइज सरंजाम देती है, इतने ज़्यादा रोज़े नहीं रखती, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ुबान की बड़ी अच्छी है, ज़ुबान बहुत आला है, ज़बान में बड़ी मिठास है, किसी को दुख नहीं देती, किसी को तकलीफ नहीं देती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा वो औरत जन्नती है। सहाबा ने अर्ज़ की कि फिदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो लंबे लंबे सजदे कर रही है, लंबे लंबे क़याम कर रही है, लंबी लंबी इबादत कर रही है, सारे नेक अमाल कर रही है, वजह क्या है? वो जहन्नुम में चली जाएगी। एक वो है ज़्यादा सजदे नहीं करती, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करती, ज़्यादा रोज़े नहीं रखती, ज़्यादा सदका व खैरात नहीं करती, वो जन्नत में चली जाएगी। आका ने फरमाया ज़ुबान की बेहतरी, उसने अखलाक जो है वो बंदे की किस्मत को उतार देता है। दोस्तों वक़ार, हमें अपने अखलाकियात के अंदर गौर व फिक्र करना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमा रहा है, मैं हकूक़ुल्लाह जो है वो माफ़ कर देता हूँ, हकूक़ुल्लाह माफ़ कर देता हूँ, हकूक़ुल इबाद तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक जिस बंदे का हक खाया है वो तुम्हें माफ़ ना कर दे। अगर वालिदैन का हक खा रहे हो, जितनी देर तक माँ बाप माफ़ नहीं करेंगे उतनी देर तक रब माफ़ नहीं करेगा। किसी कमज़ोर भाई का हक खा रहे हो, वो तो सब्र कर लेगा, तुम्हारी बहन सब्र कर लेगी,
आयज़ व क़रीब सब्र कर लेंगे, लेकिन उस रब की फकर बहुत सख्त है। जब हिसाबों की किताब का दिन आना है, उस दिन की फिक्र करनी चाहिए। तो दोस्तों वक़ार, हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मामलात हैं उनके अंदर जो है दयानतदारी पैदा करें, इंसाफ पैदा करें, हुस्ने सलूक के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएँ। अगर हमारा ये काम बन जाता है, हुस्ने सलूक पर अमल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटते हैं, शायद इसी काम की वजह से अल्लाह हम पर राज़ी हो जाए और हमारी ये दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारे आखिरत के रास्ते भी आसान हो जाए। दोस्तों वक़ार, हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारी ज़ुबान, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हर जिस्म का हर एक हिस्सा जो है किसी मुसलमान को तकलीफ़ देने के लिए हरकत में ना आए, बल्कि मदद करने के लिए हरकत में आए। अगर हम मदद नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, कम अज़ कम उसे दुख भी देने की कोशिश ना करें, उसका दिल दुखाने की भी कोशिश ना करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो हमें खुद इस हदीस को भी सोचना चाहिए, क्या हम बेहतरीन मुसलमान हैं? क्या हमारे हाथ से हमारा भाई महफूज है? क्या हमारे हाथ से हमारी बहन महफूज है? क्या हमारी ज़ुबान से हमारे आइज़ व क़रीब महफूज हैं? हाँ, अगर महफूज हैं, हमसे खुश हैं, तो समझ लीजिए उस मुबारक लबों से जो आवाज़ निकल आई है, जो फरमान निकल आया है, हम बेहतरीन मुसलमान हैं। अगर हमारे हाथ से, हमारी ज़ुबान से कोई महफूज नहीं है, तो समझ लीजिए हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए और सही मानों पे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला